Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. If you could travel within a crystalline solid, you would see the particles, atoms, ions, molecules arranged in a regular array. Here, the spaces are greatly exaggerated, but in reality, the particles are packed close together. The unit cell of a crystal structure is the smallest portion that defines the structure. Stacking unit cells next to each other in all three directions gives the structure. Many elements and simple compounds have unit cells from the cubic crystal system. Let's examine the three types of cubic unit cells. All cubic unit cells have particles at the corners of a cube. The simple or primitive cubic unit cell has particles at the corners only. In reality, the particles lie as close to each other as possible. Note that the particles touch along the cube edges but not along a diagonal in the face or along a diagonal through the body. By slicing away parts that belong to neighboring unit cells, we see that the actual unit cell consists of portions of the particles. When the cells pack next to each other in all three dimensions, we obtain the crystal. If we fade the others out, you can see the original group of 8 particles within the array and the unit cell within that group. We find the number of particles in one unit cell by combining all the particles' portions. In the simple cubic unit cell, 8 corners, each of which is 1/8 of a particle, combine to give 1 particle. A key feature of a crystal structure is its coordination number, the number of the nearest neighbors surrounding each particle. In a simple cubic array, any given particle has a neighboring particle above, below, to the right, to the left, in front, and in back of it for a total of 6 nearest neighbors. The body-centered cubic unit cell has a particle at each corner and one in the center, which is colored pink to make it easier to see. With full-size spheres, you can see that the particles don't touch along the edges of the cube, but each corner particle does touch the one in the center. The actual unit cell consists of portions of the corner particles and the whole one in the center. 8/8 give 1 particle, and the one in the center gives another for a total of 2 particles. In this tiny portion of a body-centered cubic array, you can see that any given particle has 4 nearest neighbors above and 4 below for a total of 8 nearest neighbors. The face-centered cubic unit cell has a particle at each corner and in each face, which are colored yellow here, but none in the center. The corner particles don't touch each other, but each corner does touch a particle in the face, and those in the faces touch each other as well. The actual unit cell consists of portions of particles at the corners and in the faces. 8/8 at the corners gives 1 particle, and half a particle in each of 6 faces gives 3 more, for a total of 4 particles. In this tiny portion of a face-centered cubic array, notice that a given particle has 4 nearest neighbors around it, 4 more above and 4 more below for a total of 12 nearest neighbors. Stacking spheres shows how the 3 cubic unit cells arise. Arrange a layer of spheres in horizontal and vertical rows. Note the large diamond-shaped space among the particles. Placing the next layer directly over the first gives a structure based on the simple cubic unit cell. Those larger spaces mean an inefficient use of space. In fact, only 52% of the available volume is actually occupied by spheres. Because of this inefficiency, the simple cubic unit cell is seen rarely in nature. A more efficient stacking occurs if we place the second layer over the spaces formed by the first layer, and the third layer over the spaces formed by the second. That simple change leads to 68% of the available volume occupied by the spheres and a structure based on the body-centered cubic unit cell.
Many metals, including all the alkali metals, adopt this arrangement. For the most efficient stacking, shift every other row in the first layer so the large diamond-shaped spaces become smaller triangular spaces, and place the second layer over them. Then the third layer goes over the holes visible through the first and second layers. In this arrangement, called cubic closest packing, spheres occupy 74% of the volume. Note that it is based on the face-centered cubic unit cell. Many elements, covalent compounds, and, as you will see in the next two examples, ionic compounds adopt cubic closest packing. Sodium chloride adopts the sodium chloride or rock salt structure, as do many other alkali, halides, alkaline earth oxides and sulfides, and other ionic compounds. Picture separate face-centered cubic arrays of chloride ions and sodium ions as they approach and interpenetrate each other. The smaller sodium ions fit in the holes between the larger chloride ions and the NaCl unit cell. Zinc sulfide adopts the zinc blend structure, as do the copper-1 halides and several other compounds. If face-centered cubic arrays of zinc ions and sulfide ions approach and interpenetrate slightly offset from each other, each ion becomes surrounded tetrahedrally by 4 of the other ions. Note the blinking zinc ion and the 4 sulfides. You can see the relative positions in this slightly expanded view of the zinc blend unit cell. अभी आप लोगों ने जो देखा ये इसमें तीनों के बारे में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, जिससे कि थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट और मजबूत हो। लैटिस पॉइंट्स के बेसिस पर चीजों को हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उससे थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। क्या आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन को हमारे? जी सर। ठीक, देखिए जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी करी थी वो हम लोग कहते हैं कि दैट इज अ डायरेक्ट लैटिस, या फिर हम उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस, है ना। तो स्पेस लैटिस की बातें हो रही हैं। स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस में जो लैटिस है जिसको हम लोग एक स्पेस में ड्रॉ करते हैं वही स्पेस लैटिस है। अब होता क्या है कि जब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटेशन भी क्या है वो भी बता देता हूँ आपको, कि एक सॉलिड है, अब सॉलिड के भीतर किस प्रकार से एटम्स का अरेंजमेंट है, अगर ये हमको समझना है तो हमको इसकी एक फिजिकल स्टडी करनी पड़ेगी। और उस स्टडी को करने के लिए जो सबसे आसान एक्सपेरिमेंट हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन स्टडी। अब डिफ्रैक्शन स्टडी से क्या होगा? एज यू नो कि जो डिफ्रैक्शन है उसमें होता क्या है, अगर कोई यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल रख दिया जाए और इस ऑब्स्टिकल पर इस ऑब्स्टिकल पे अगर इधर से लाइट अगर जा रही हो, लाइट जा रही हो, तो ये जो ऑब्स्टिकल है इस ऑब्स्टिकल से ये सीधे निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो ये सेटेड एरिया होता है, मतलब कि जहां पे ऑब्स्टिकल रहता है, ये लाइट इधर बेंड हो जाती है। और ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट, एक मिनट बोल लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट है।
तो बेंड हो गई लाइट, जो है उस एरिया में बेंड हो गई जहां पर कि उसको नहीं जाना चाहिए था। ये घटना है डिफ्रैक्शन। इस डिफ्रैक्शन को हम लोग जो है यूज करते हैं जब वी वांट टू स्टडी अ सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे देखिए यहाँ पे ये सब एटम्स हैं। अगर हम इधर से लाइट को इंसिडेंट करा दें, लाइट इंसिडेंट हो, तो क्या होगा कि लाइट इनसे टकराएगी और जहां पे एटम होगा उस वाले एरिया को में ये नहीं आ पाएगी और इधर बेंड होगी, इधर से बेंड होगी, इधर से बेंड होगी। तो यहाँ जब हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक हमको डिफ्रैक्शन फिनोमिना जो इस प्रकार का बनता है, आपने देखा होगा। डिफ्रैक्शन फिनोमिना इस प्रकार का बनता है, ये एक डिफ्रैक्शन फिनोमिना हमको मिलेगा। तो डिफ्रैक्शन की स्टडी हमने आपको बताया यूज करते हैं लैटिस या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। अब जब ये स्टडी किया जाता है तो हमको पता क्या चलता है कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, ये कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो वाकई में ये जो पॉइंट्स हैं इनका बहुत रोल नहीं है, बल्कि रोल किसका है, तो रोल हो जाता है पॉइंट्स की बजाय प्लेन्स का रोल होता है। प्लेन्स का रोल होता है मतलब कि ये सारे के सारे जो एटम्स हैं उनको जब आप मिलाओगे तो ये देखो, एक 2 डायमेंशन में एक ऐसे एक 1 डायमेंशन तो लाइन बनेगी, 2 डायमेंशन में एक प्लेन बन जाएगा, फिर इसके नीचे वाले लेयर को मिलाएंगे तो फिर एक प्लेन बन जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक प्लेन बन जाएगा, इस तरीके से। तो होता क्या है कि जो लाइट होती है वो इन प्लेन्स के बीच से गुजरती है, इन प्लेन्स के बीच से गुजरती है और इसका इधर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको प्राप्त होता है। तो ये एविडेंट है, आप इसको कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि जो पॉइंट्स की बजाय प्लेन्स इंपॉर्टेंट। अब सवाल उठता है कि अगर प्लेन्स इंपॉर्टेंट हैं तो इन प्लेन्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने प्लेन्स को पढ़ा है ना। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं और वहाँ प्लेन्स की स्टडी करते हैं। हमको ये पता है कि अगर हम इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस लें और यहाँ पर कोई अगर हमने पॉइंट ले रखा है P और P का कोऑर्डिनेट अगर हम कहते हैं एक्स वाई और जेड है, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि P की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से ये x है तो x से डिस्टेंस y हो जाएगा, y से इसका इतना हो जाएगा, और z एक्सिस अगर हम लेते हैं तो z से इसकी दूरी z हो जाएगी। तो x y z से हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर हम कहें कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x y z, तो प्लेन्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक न्यू नोटेशन है, इसका न्यू नोटेशन, और ये जो नया नोटेशन है ये होता है इसी तरह से एक्स वाई जेड की बजाय उसको कहते हैं एच के और एल। ये जो नोटेशन है ये एक नया नोटेशन है और इसको हम लोग कहते हैं, इसके भीतर जो जैसे ये एक्स वाई जेड है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, है ना, ये ऑर्डिनेट्स। तो इसी तरह से जो एच ए और एल हैं ये भी 3 एलिमेंट हैं और 3 इंडिसेज हैं, 3 नंबर हैं, और हम इनको यहाँ कहते हैं मिलर इंडिसेज। मिलर इंडिसेज, ठीक है ना। तो मिलर इंडिसेज क्या हो गए। मिलर इंडिसेज को अगर मैं कहूँ संक्षेप में MI कहूँ तो मिलर इंडिसेज को अगर मैं एब्रिविएशन MI करूँ तो मैं कहूँगा कि मिलर इंडिसेज है क्या, तो दे रिप्रेजेंट प्लेन।
ये प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो प्लेन्स का रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें 3 इंडिसेस का होना जरूरी है, एच, के और एल। ध्यान में क्या रखना है आपको, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, आप बता सकते हैं कि जैसे हमको कोऑर्डिनेट लिखना है किसी पॉइंट का, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखना है, हमने लिखा कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, ये सही है गलत है? ये लिख सकते हैं ना ऐसे कोऑर्डिनेट? हम इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं या नहीं? नो सर। नो, क्यों नहीं लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि सर बीच में कॉमा नहीं होगा, आपने बताया। नहीं, अभी तो मैंने कहा नहीं, हमने कोऑर्डिनेट की बात की, हमने अभी एच के एल या मिलर इंडिसेस की बात नहीं की। हाँ, तो कोऑर्डिनेट तो ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग लिख सकते हैं 2, 3, 4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सही है, ये रिप्रेजेंटेशन सही है, बट अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते 2, 3, 4, ये सही होता? ये गलत होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने का मतलब है कि वी मस्ट पुट अ कॉमा बिफोर द इंडिसेस। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको कॉमा लगा लगा के लिखना होता है, और जब हम लिखते हैं मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस में ध्यान कर देना है कि हमें कॉमा नहीं लगाना है, इसमें हमको नो कॉमास, ठीक है ना, कोई कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे हमने लिखा कि 1, 2 और 3, ये मिलर इंडिसेस सही है गलत है? सही है। 1, 2, 3 लिखना सही है। हाँ? ये सही है, ये सही तरीका है। बट अगर हमने लिख दिया 1, 2, 3, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। तो मिलर इंडिसेस में हम इंडिसेस को लिखेंगे और विदाउट कॉमा लिखेंगे, तो ये तरीका बिल्कुल सही होगा। हम इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, या कहीं कहीं पे ये नोटेशन भी चलता है, 1, 2, 3 ऐसे भी चलता है। अब आइए इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल पहले देखें, कैसे हम लोग मिलर इंडिसेस को लिख सकते हैं ना। हाउ टू राइट मिलर इंडिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला काम आपको क्या करना है कि जिस प्लेन का आपको मिलर इंडिसेस लिखना है, ठीक है ना, आइडेंटिफाई, पहला क्या है, आइडेंटिफाई। आपको किसको आइडेंटिफाई करना है? प्लेन को आइडेंटिफाई करना है, किस प्लेन का आपको मिलर इंडिसेस लिखना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूं, और उस प्लेन को मैं पहले बना लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए कि एक हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको बल्कि मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगा, ये है, और ये मान लीजिए कि इसका ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, और ये इसका जेड एक्सिस है। हम मान लीजिए कि हम इस प्लेन का हम निकालना चाहते हैं, इस प्लेन का मिलर इंडिसेस लिखना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहला काम क्या, इसको आइडेंटिफाई कर। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम हमें ये करना है कि हमको पता लगाना है कि ये जो प्लेन है वो एक्स, वाई और जेड एक्सिस को
कहाँ कहाँ पे काटेगा, एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काटेगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा कि फाइंड आउट इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस पे निकाल लीजिए कि एक्स को कहाँ पे काटता है, वाई को कहाँ पे काटता है और जेड को कहाँ पे काटता है, ये निकाल लीजिए। फिर तीसरा काम ये करना है कि जहां भी ये काट रहा होगा उसका आप रेसिप्रोकल निकाल लें। पॉइंट रेसिप्रोकल है ना ऑफ इंटरसेप्ट, जो आपने ऊपर इंटरसेप्ट निकाला है उसको रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। चौथा काम क्या करेंगे कि जो भी होगा उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। और पांचवा क्या हो गया कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पुट देम इन अ ब्रैकेट विदाउट कॉमा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। ये 5 पॉइंट हैं प्लेन का आइडेंटिफिकेशन। पहला, वो प्लेन एक्स वाई जेड को कहाँ कहाँ पे काटता है उसको पता लगाना। फिर जो भी वैल्यू निकल के आए उसको रेसिप्रोकल लेना, और रेसिप्रोकल लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना और फिर ब्रैकेट में रखना। अंत में जो कुछ भी आएगा वो किस नेचर का होगा, वो इस प्रकार के नेचर का होगा, एच के और एल, और इसी को हम लोग बोलेंगे मिलर इंडिसेस। तो इतने स्टेप में अपने को मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करना है। उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप खुद भी कीजिएगा और मैं करके दिखा भी देता हूं इसको। मान लीजिए कि आप एक यहाँ पर इस प्रकार से हम लेते हैं, एक प्लेन है जो एक्स को देखिए यहाँ पे काट रहा है, एक्स को यहाँ पे काट रहा है, वाई को यहाँ पे काट रहा है और जेड को यहाँ पे काट रहा है। उस प्लेन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ वो इस प्रकार का ड्रॉ होगा, वो कुछ प्लेन इस प्रकार का ड्रॉ होगा, लाइक दिस, है ना। ये पूरा प्लेन है, ये प्लेन इसको काट रहा है, एक्स को, वाई को और जेड को। अगर हम मान लें कि एक्स की ये जो पूरी यूनिट लेंथ है, मतलब 1 1 1 की लंबाई है, यूनिट सेल है, यूनिट सेल, दिस इज अ यूनिट सेल। तो अगर मैं कहूं कि एक्स को कहां पे काटता है, तो पहला काम तो हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई ये प्लेन हो गया, ये जो हमने ब्लू कलर में है इस प्लेन को ले लिया। अब एक्स को कितने डिस्टेंस पे काट रहा है, तो देखिए इस ओरिजिन से एक्स को ये डिस्टेंस पे जाके काट रहा है, ये डिस्टेंस पे, ये ले सकते हो, 1 भी ले सकते हैं। तो हमने कहा कि इसको एक्स को 1 डिस्टेंस पे काट रहा है। वाई को कितने डिस्टेंस पे काट रहा है, तो ये वाई एक्सिस है, इधर की तरफ ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो वाई को भी देखिए जाके काट रहा है ये 1 डिस्टेंस पे, ये भी 1 हो गया। और जेड ये एक्सिस है, इसको भी जाके यहाँ 1 पे काट रहा है, तो इसको भी हम लोग 1 ले लिया। तो एक्स वाई जेड तीनों 1 1 हो गए। जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा करेंगे इनको, तो 1/1 1/1 और 1/1 क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई होके हो जाएंगे 1 1 और 1। अब 1 1 1 तीनों है, तो इससे अधिक सिंप्लीफिकेशन इसका हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। तो हम क्या करेंगे, फाइनली इनको उठा के यहाँ रख देंगे, 1 1 1। ये हो गया इस प्लेन का मिलर इंडिसेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इसी को थोड़ा मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं।
मान लीजिए कि ये जो क्यूब है हमारा, ये क्यूब इस प्रकार का होता, ये क्यूब थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, एक और इसमें आगे क्यूब जोड़ देते हैं, एक क्यूब और आगे जोड़ देते हैं लाइक दिस। आपने देखा अब कितने क्यूब हो गए टोटल वहां पे? टोटल क्यूब कितने हो गए सर? दो क्यूब, ठीक है ना, 2 क्यूब। अब अगर मान लीजिए कि हम एक इसी में ऐसे लेते हैं, अब हम ये इसकी जगह ये ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा, और एक थोड़ा इसको भी हम 2 यूनिट ले लेते हैं, इधर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए पॉइंट मैंने एक यहां लिया है, मैं दूसरे कलर से ले लूं इसको ताकि ध्यान में आएगा। एक पॉइंट अब मैंने यहां लिया है, एक पॉइंट हमने यहां लिया है, और एक पॉइंट इसके और ऊपर करके यहाँ पे ऊपर का जो ये बन रहा होगा एक यहाँ पे लिया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिया है। अब इन 3 पॉइंट को मिलाने वाला ये जो प्लेन है, अब हमें इसका निकालना है, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया था, पहला पार्ट हो गया था। अब दूसरे का ले रहे हैं। चलिए, तो ये प्लेन जो हमने ग्रीन कलर में बनाया है, दिस इज ग्रीन कलर वाला, ये एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काट रहा है? 1 डिस्टेंस पे सर। नहीं बेटा, नो नो, एक्स एक्सिस, हाँ एक्स, देखिए एक्स एक्सिस ये है ना इसकी, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, तो 2 यूनिट पे काटेगा एक्स को 2 पे काटेगा ये। और वाई को कितने पे काट रहा है? ये ऊपर वाली एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस वाई है, वाई को कितने पे काट रहा है? 1 नो सर 2 सर वो भी वाई को भी देखिए 2 पे, यार वाई कौन सा है? वाई ये एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस वाई है, तो ये तो यहाँ से 1 डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, और इसके ऊपर फिर 1 डिस्टेंस है, तो वाई को भी 2 पे काट रहा है, तो वाई को भी 2 पे काट रहा है ये। और जेड को कहाँ पे काट रहा है? ये वाली जो है वो जेड है, दिस इज जेड, तो जेड को 1 पे काट रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 2 1, तो इसके इंटरसेप्ट्स हो गए 2 2 1, मतलब 2 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, और 1 यूनिट ऑन जेड एक्सिस। अब इसको जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, यहाँ क्या होगा 1/2, और यहाँ पे क्या होगा 1/1। अब 1/2, 1/2 और 1/1 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या करना चाहिए? हम देख लें कि नीचे कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, सबको, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम अगले में क्या करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, फिर हो जाएगा 2 × 1/2, और 2 × 1/1, मतलब ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 2, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। इसको उठा के रख देंगे ब्रैकेट में, 1 1, ये क्या बन गया इसका मिलर, ठीक है। तो जो हमने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था, इस एग्जाम्पल में 1 1 2 जो है मिलर इंडिसेस इसका हो गया। आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हुआ होगा इसमें। अब इसी चीज को हम अगर और थोड़ा सा बढ़ाएं तो मैं आपको 2 क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, और अगर आप उसमें निकाल सके तो मुझे तुरंत बताइएगा। देखिए, एक
ये क्यूब हमारे पास है, ये एक क्यूब है और एक क्यूब है इसके बगल में और एक क्यूब और भी है बगल में, ठीक इसी के जैसा, ठीक इसी के जैसा एक और भी है। अब आपको मैंने दो इसमें नाम दिए हैं, इसका आप पहले निकाल चुके ऑलरेडी। इसमें आपको एक ये है ए बी सी और डी, एक तो ये प्लेन है और दूसरा प्लेन है इसमें ई एफ जी और एच। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें निकालना है मिलर इंडिसेस ऑफ ए बी सी डी। बताइए कैसे निकाला जाए। पहला स्टेप क्या होगा, ए बी सी डी हमने आइडेंटिफाई कर लिया प्लेन को। अब दूसरा काम क्या है, इसके इंटरसेप्ट्स निकालना। तो इंटरसेप्ट्स कौन कौन से हैं इसके, एक्स पे कहाँ काटेगा, वाई पे कहाँ काटेगा और जेड पे कहाँ काटेगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि इसका जो एक्स वाई और जेड है वो ये है, दिस इज जेड एक्सिस, ये जो है इसकी एक्स एक्सिस है और ये जो है इसकी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पे काट रहा है, बताएं। ए बी सी डी के लिए एक्स वाई जेड का मान, इंटरसेप्ट्स क्या होंगे। सर सभी वन है। सभी वन है। यस एक बात बताओ कि ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। यस सर। तो एक्स का तो इंटरसेप्ट वन हो गया, बट वाई का कहाँ वन हो गया बेटा। प्लेन तो ये है ना हमारा, ये प्लेन है, ये प्लेन है, क्या ये प्लेन वाई को कट करेगा। ये प्लेन, जब इस प्लेन को आप ऊपर बढ़ाओगे तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ना, लाइक दिस। ये तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा ऊपर, और वाई भी इसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो वाई को तो कभी कट ही नहीं करेगा ये। आप जिस कमरे में बैठे हो वहां पे आप एक कॉर्नर को बना दो ओरिजिन, ये ओरिजिन बना दो एक को, है ना। इस ओरिजिन से इतनी दूरी आगे आओ और जो दूसरी दीवार है वो दीवार देखो, वो जो दीवार है वो एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस पर है, तो ये तो हो गया वन हो गया। लेकिन वो दीवार जो है कभी वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस जो सीधे दीवार ऊपर जा रही है, क्या इसको ये दीवार कभी टच करेगी जाकर। कमरे की दो दीवारें क्या आपस में कभी टच करेंगी, नहीं टच करेंगी। तो जब दो चीजें किसी को टच नहीं करती हैं तो वो कहाँ मिलती हैं जाकर, इनफिनाइट पर। तो वो इनफाइनाइट पे मिलेंगी। इसका मतलब कि ये जो प्लेन है ये वाई एक्सिस, मतलब ये जो प्लेन है ये प्लेन वाई एक्सिस को इनफाइनाइट पे जाके कट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। इसी तरीके से ये जो जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में है और ये प्लेन भी, ये जो दीवार है वो भी इसके पैरेलल चलती जा रही है ऐसे, है ना, ये भी पैरेलल चलती जाएगी। यस सर। तो जेड एक्सिस को भी ये कहाँ पे कट करेगी जाकर, इनफिनाइट। जेड एक्सिस को भी इनफाइनाइट पे कट करेगी, ठीक है ना। तो एक्स को ये यूनिट पे काटेगी यहाँ पर, वाई को इनफाइनाइट पे और जेड को इनफाइनाइट पे। तो वन इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये जो हो गया इसके इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल करोगे तो वन अपॉन वन, वन अपॉन इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज कितना हो गया, सिंप्लीफाई करके वन हो गया, जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। तो इसका जो है एम आई कितना हो गया, 1 0 0। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं
कि इसको देख के जरा कुछ हमको बताइए, इसको देख के आप क्या कह सकते हैं कि जिसका मिलर इंडिसेज में जो इंडिसेज जीरो होगी, जैसे यहाँ पे जीरो है ये, वो इसका मतलब कि वो जो है y के पैरेलल है। वो जिसका इंडिसेज जीरो होगा इसका मतलब कि प्लेन y के उसके पैरेलल होगा। z भी जीरो है तो इसका मतलब z के भी पैरेलल है। तो जहां भी जीरो इंडिसेज आपको मिलेगी, जीरो इंडिसेज, तो जीरो का मतलब हो जाएगा कि प्लेन वहां पर उसके पैरेलल है। ये ध्यान में रखना है आप। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि हो सकता है कि आपको मिलर इंडिसेज दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसको देख के बताइए कि वह प्लेन किस एक्सिस के पैरेलल है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं दूसरा, एक एग्जांपल आपको और मैं देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें आपसे कि एक वैल्यू है 2 3 0, बताइए किसके पैरेलल होगा ये? किसके पैरेलल होगा? जेड के पैरेलल होगा। और अगर हम कहें 0 0 5 है तो किसके पैरेलल होगा? एक्स और वाई के पैरेलल होगा। एक्स और वाई दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है ना। अब इसी से एक चीज बताओ, ये ठीक, ये पैरेलल होगा। तो ये तो हमने निकाला ABCD का। अब जरा यहीं पर आपको मैं एक दूसरा भी क्वेश्चन करा रहा हूं और वो है मिलर इंडिसेज ऑफ इसका E, F, G और H का, इस वाले का EFGH का बताना है। चलिए पहला आप समझ गए हैं ABCD, तो आई होप कि आप EFGH का आसानी से आंसर देंगे। आप बताइए कि EFGH प्लेन एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट करेगा? 2 सर 2 0 0 2 0 0 नहीं, एक्स को कहां पे कट करेगा? 2 पर करेगा। और ये y को कहां पे कट करेगा? इनफिनाइट गुड, इनफाइनाइट पे। और z को? इनफिनाइट गुड, z को भी इनफाइनाइट पे। इसका मतलब हो गया कि 2 इंफिनिटी इंफिनिटी हो गया इसका इंटरसेप्ट। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 1/इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी आएगा। दैट मीन्स कि 1/2 ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें अगर तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सभी को, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिलर इंडिसेज क्या आ गया? 1 0 0। ये बताइए कि ये दो चीजें एक ही आ गई? यस सर। चलो, इससे क्या पता चला? अगर मान लो कि इसी तरह जो EFGH है, ठीक ऐसा ही प्लेन अगर हम एक और आगे यहाँ बढ़ा देते, अगर हम एक यहाँ आगे भी प्लेन बढ़ा देते लाइक दिस, अगर हम एक और यहाँ प्लेन बढ़ा देते इसका, ठीक है, और EFGH यहाँ लिख रहे हैं, अगर हम इसको I, J, K और L कहते, तो आप मुझे बताइए बिना आप सॉल्व किए हुए कि मिलर इंडिसेज ऑफ I, J, K, L कितना होता? A0 0 कितना? 1 0 0। इसी तरह से अगर एक और आगे होता तो भी कितना होता? 1 0 0। कोई, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो प्लेन्स हैं, जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे, जो भी ABCD के पैरेलल प्लेन होगा, उन सबका मिलर इंडिसेज 1 0 0 ही होगा। तो व्हाट वी कैन से हियर, सर बहुत सारे माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बंद करो सब लोग, अपने अपने माइक आप बंद कर लीजिए, है ना, माइक्रोफोन को ऑफ कीजिए, ठीक है। तो जब बोलना हो तब ऑन कीजिए, फिर उसको ऑफ कर दीजिए।
तो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं कि एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट एक हमको यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और कंक्लूजन हमारा ये है कि जो मिलर इंडिसेस हैं रिप्रेजेंट अ set of parallel planes, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में आएगा कि मिलर इंडिसेस डू नॉट रिप्रेजेंट अ सिंगल प्लेन, दे रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। मतलब कि जितने भी ऐसे प्लेन्स होंगे जो किसी भी प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग हो तो उनकी वैल्यू एक ही होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लेन्स हैं, ये प्लेन है, फिर ये प्लेन है, फिर ये जितने भी प्लेन्स होंगे जो इसके पैरेलल होंगे, तो अगर हमको एक का अगर मिलर इंडिसेस पता चल गया, मान लीजिए कि इसका हमको मिलर इंडिसेस पता चल गया जो है 302, तो ये जितने प्लेन्स है ना सबका रिप्रेजेंटेशन इसी से हो जाएगा। तो एक के जानने से सब जान गए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में और मिलर इंडिसेस सिस्टम में क्या फर्क हो गया? फर्क यह है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि ये जो एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स वाई और जेड, ये हर पॉइंट का अलग अलग होगा। वो चाहे थोड़ा भी अलग होगा तो ये अलग ही होगा कोऑर्डिनेट। लेकिन मिलर इंडिसेस में क्या होगा? मिलर इंडिसेस में ये होगा, ये जो एक्स वाई और जेड हैं या एच के एल हैं, इसको एच के एल ही कही ज्यादा सही रहेगा, ये जो एच के और एल है, ये एक प्लेन का अगर पता है तो जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं सबका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड मैथमेटिक्स व्हिच वी कैन understand very easily. What we should do, you should go to the previous year questions and you should find out some questions from there and you should practice it. वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको मिलर इंडिसेस निकालने को दिया जाएगा। दो बातें उसमें, दो तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं आपसे। एक क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन का टाइप है ना, एक क्वेश्चन टाइप 1 ये होता है कि प्लेन्स आर गिवन, प्लेन गिवन होता है, प्लेन गिवन, और आपसे पूछा जाता है मिलर इंडिसेस। दूसरा क्या होता है, क्वेश्चन टाइप 2, उसमें क्या होता है कि मिलर इंडिसेस आर गिवन और आपको कहा जाता है यू ड्रॉ द प्लेन, ड्रॉ द प्लेन। ठीक है ना, जैसे मैं आपको दे दूं कि आप ऐसा कीजिए कि ये 1 0 0 है, इसका प्लेन ड्रॉ कीजिए। तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको निकालना, पहले आप लिखेंगे इसमें इसका मिलर इंडिसेस 1 0 0 है, तो आप फिर इसको ऐसे उल्टा करेंगे, मतलब जो आपने मिलर इंडिसेस निकालने के लिए किया था उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। और जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले आपने लिखा, फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/1 1/0 और 1/0, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इसका मतलब कि x को ये 1 यूनिट पे काटेगा, y को इनफाइनाइट पे काटेगा और z को इनफाइनाइट पे काटेगा। और फिर आप क्या करेंगे, इसको लेकर एक आप बनाएंगे क्यूब, और उस क्यूब के भीतर इसको आप करेंगे ड्रॉ, ये आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ऐसे बना देंगे। और बनाने के बाद में आप पहले इसमें एक्सिस भी लिखेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, फिर यहाँ पे हो जाएगा कि वाई एक्सिस है, और ये हो जाएगा कि जेड एक्सिस है। फिर आपने बनाया कि ये x को 1 पे काटेगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि x को 1 पे काट रहा है, y को इनफाइनाइट पे काटेगा और z को इनफाइनाइट पे काटेगा। इसका मतलब कि हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं। इसको आप कलर कर देंगे और ये हो जाएगा आपका। तो दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं कि प्लेन देकर मिलर इंडिसेस और मिलर इंडिसेस देकर उसका फिगर कैसा दिखेगा, इन के बारे में। यहाँ तक जो हमने स्टडी किया है, इफ यू हैव एनी इशू देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी शुड मूव फॉरवर्ड।
ये चीज आपको पूरी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आया। आप लोगों ने अनसॉल्व पेपर वगैरह लिया है पिछले सालों का? नहीं लिया होगा, है ना? चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक क्यूब है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने पास या बना लीजिएगा। इसमें आपको एक हम बता रहे हैं, एक पॉइंट देखो यहां पर है, दिस पॉइंट, दिस वन, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है? 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी, और इनको जो मिलाने वाली लाइन है वो जो प्लेन बनाएगा उस प्लेन का आपको निकालना है मिलर डिस्टेंस। एक ये बनाना है, ए बी सी, है ना पहला। फिर दूसरा बनाना इसी में कि यहां पे मैं दे रहा हूं ओ पी क्यू और आर, तो आपको 2 में दे रहा हूं। पहला बनाना है आपको जो प्लेन एबीसी है उसका इंडिसेस बताना है, और बी में है ओ पी क्यू और आर। एक और ले लेते हैं, डी ई एफ और ये जी। तो सी में है कि जो ये डी है, दिस इज डी, डी ई एफ जी, ये तीनों का आपको मिलर इंडिसेस निकालना है। मिलर इंडिसेस, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हो गया, यू हैव टू ड्रॉ planes for A, ये है 0 1 2, B में है -1 1 और 1, और C में है 1 2 2। ये इसको आपको ड्रॉ करना है। ये 2 क्वेश्चंस कीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।